मैं ग्रेजुएट था, मैंने सीपीए कर ली, मैंने 4 पेपर क्लियर कर लिए। अब मेरी नौकरी जो लगेगी वो 10 लाख लगेगी, 12 लाख लगेगी। क्या आप मेरे को यूएस में जॉब दिलवा दोगे? कैन वी गिव दिस सॉर्ट ऑफ श्योरिटी एंड गारंटी? Hi everybody, welcome to Edumont podcast series. Today's episode we'll be talking about common myths related to CPA program which a graduate generally face and end up taking some shorter term programs which end up giving them not a good job in the market. And to answer all those myths, on my right side we have Mr. Rohan. He's a CPA, CMA, and the co-founder of Edumont. He's been instrumental in this industry for more than 8 years now, and he's been teaching candidates across almost all universities across India. At least private only. So, welcome, Rohan, to one of our podcast series today. By the way, हमारा Mohit भी कम नहीं है. He is he's got 9 years of experience, so in a way you're my senior. You've got more experience than I do. And Mohit and his team actually interact with the candidates on a daily basis, in and out on phone calls, etc. Yeah. So you've got more experience in terms of dealing with the candidate directly. Yeah. Which is why I think you're the right person for this job, because you will have access to those questions. So I've that listed down students ask. all those myths for you, Right. and I want you to answer them Sure. for our audience. Absolutely. In today's series. So let's start with this, Rohan. Hmm. So the very first question which I have is, why do graduates choose to be a CPA? तो क्या ना, हमारी आज की जो यूथ है दैट्स वेरी स्मार्ट Yeah. इन इट्स थॉट प्रोसेस. और लोगों को पता है कि यार मतलब सीधा ग्रेजुएट लेवल की जो नौकरी होती है ना, दैट्स नॉट अ हाई पेइंग जॉब. Yeah. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आई एम फ्रॉम डीयू, तो हमारे टाइम पे जो फर्स्ट जॉब आई थी दैट वाज फ्रॉम ईवाई, वेरी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन. एंड आई रिमेंबर मेरा पहला प्लेसमेंट हो गया था, छूटते ही पहली अपॉर्चुनिटी में. बट इट वाज फॉर 3.5 lakhs. इट वाज नॉट अ वेरी जैसे कहते हैं ना, मतलब हाई पेइंग जॉब नहीं थी वो. और ग्रेजुएट लेवल पे ऐसा ही रहता है बाय एंड लार्ज. So I think the youth realizes in today's day and age, अब इंटरनेट की एज है, everybody has access to all kinds of information. तो लोगों को पता रहता है कि अच्छा यार, it's best if we don't just start off at the basic level, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं, and then start off at a level where you get paid almost twice as much at the beginning level itself. Zero experience भी है तो भी 7, 8, 10 लाख की नौकरी आसपास लग जाती है. And that is why people I think choose to do CPA, because it's a better payoff. At the same time, CPA में ना effort is relatively less. तो 4 पेपर हैं 1 साल 1.5 साल में, जिसको पढ़ने की आदत है, खास करके जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको पढ़ने की भी आदत होती है, डिस्कनेक्ट नहीं हुआ होता, तो वो बड़ी स्पीड से फिर उसको पिक कर लेते हैं. ये वाला आइडिया. तो दैट्स व्हाई दे डू इट. So Rohan, generally when student inquire with us over a phone call or virtual connect, and many times even parents talk on their behalf. They always ask why CPA? So why CPA? Why not something else? हाँ. सो ये डिस्कशन ना मेरे भी दिमाग में हुई थी. व्हेन आई वाज अ ग्रेजुएट स्टूडेंट एज वेल, आई हैड टू चूज कि भाई अब आगे क्या करना है लाइफ में. तो अगर आपको अकाउंटिंग में और फाइनेंस में अपना करियर बनाना, तो ज़्यादा ऑप्शन होती नहीं वैसे. या तो आप MBA करने चले जाओगे, या फिर आप CA की लड़ाई में शामिल होगे, या फिर आप US के कोर्स अगर देख रहे हो तो आपके पास CPA है, CMA है. Right. UK की तरफ चले जाओगे तो ACCA है, सीमा है, ये सारे कोर्सेज हैं. तो आपको चूज करना पड़ता है कोई एक इसमें से चुन लिया जाए. And the reason I chose CPA is because I figured out कि यार US economy is the dominant power in the entire world. वो है global super power. They are the leaders. And around the world आप देखोगे कि जो trade भी होता है ना आपस में, US dollar becomes the denominator for it. Correct. So lots and lots of economies are actually tied up in their accounting in the same way as US does it. US GAAP के variations हैं ये सारे. इनफैक्ट रिसेंटली यू वुड नोटिस कि IFRS और US GAAP का भी मर्जर हुआ था, कन्वर्जेंस जिसे हम कहते हैं. सो इट्स वेरी क्लियर कि यू आर हैविंग टू चूज बिटवीन ऑल ऑफ दीज क्वालिफिकेशंस, बट देन हु इज द डोमिनेंट पावर इन दिस? इट इज क्लियरली US. मतलब इट इज अनडिनाइबल फैक्ट, पूरी दुनिया में ये सबको पता ही है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते. तो फिर अगर आपने अकाउंटिंग डिग्री लेनी है या आपने फाइनेंस की डिग्री लेनी है, तो इंडियन लोगे या UK की लोगे या US की लोगे, ये चॉइस है. And US की लेनी just makes a lot more sense in the sense कि they are the main players in the market. तो उनकी डिग्री करोगे तो बेनिफिट तो मिलेगा. That is the idea. और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज भी खुल जाती हैं.
मेरे को भी मौका मिला था बाहर जाने के काम करने का कनाडा में फॉर एग्जांपल। तो ये सब इसीलिए पॉसिबल हुआ ना बिकॉज यूएस की डिग्री थी, इसलिए लोग सीपीए करना पसंद करते हैं और करना चाहिए उनको। Correct. So I believe deep we get into this, there are concerns related to eligibility, and my question is that only eligibility related graduates जो issues face कर रहे हैं, right, which we even discussed many times, वो हाँ एक मिथ है मार्केट में कि right, मतलब there are myths ग्रेजुएट कि हो you तो know एलिजिबल नहीं हो नहीं हो सीपीए के लिए। सकता, उसको कुछ करना पड़ेगा addition. So हाँ। how you take care of that? So the way I look at it is, in all honesty, the rules are also very clear in this. वैसे you need 120 credits to become eligible for the exam, and then you need 150 credits to become eligible for your license. Right. तो वो 120 क्रेडिट्स जो हैं आमतौर पे 30 क्रेडिट्स मिलते हैं पर ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो बीकॉम वाले के 3 साल का है या बीबीए करी तो 3 साल का है, तो आमतौर पे 3 साल की ग्रेजुएशन होती, तो आपके बनेंगे 30 into 3 90 क्रेडिट। तो ये मिथ बड़ा कॉमन है फैलना कि यार तो एलिजिबल ही नहीं है। बट इफ यू लुक एट द एक्सेप्शन केसेस, द एक्सेप्शन रूल्स दैट आर अवेलेबल, तो उसमें ये कहता है इफ यू गॉट 8+ अकाउंटिंग बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स क्रेडिट्स, एब क्रेडिट्स, तो आप एलिजिबल हो अपना एग्जाम देने के लिए इवन विद 90 क्रेडिट्स। ओके। एंड अभी रिसेंटली, और आपको पता ही है मतलब हमने काफी इस पे पिछले 3 हफ्ते इसी डिस्कशन में अपने नाजबा के साथ कनेक्ट कर करके बिताए हैं कि हाउ डू वी गेट मोर पीपल इन्वॉल्वड इन दिस। तो उसमें यही बात निकली है इन दी एंड कि इफ समबडी हैज द इंटेंशन टू डू एमकॉम और यू नो मास्टर्स डिग्री आफ्टर द ग्रेजुएशन, वी विल स्टिल एक्सेप्ट द केस। राइट। तो एज अ ग्रेजुएट एलिजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती अब। हाँ एक टाइम पे आती थी, अब नहीं आती। अब ये सिचुएशन है कि इवन विद 90 क्रेडिट्स you can become eligible for the exam as long as you have the intention to complete your education and do the full 150 by the time you get your license. Okay. ये point है। So you just mentioned this, you know, credit points and you know these. I think this might sound like jargon to the people who are just in the initiating of their research onto CPA. So just please explain what are these credits and you know accounting credits. Right, मैं बताता हूँ ये क्रेडिट क्या होते हैं। So इंडिया में ना हमें हर सब्जेक्ट के परसेंटेजेस मिलते हैं एंड इफ यू लुक एट क्रेडिट्स, तो क्रेडिट्स आर एसेंशियली कन्वर्जन ऑफ दैट परसेंटेज इनटू पॉइंट्स। सो इस प्रोसेस को ऑफिशियली इवैल्यूएशन कहते हैं। सो एसेंशियली एवरी सब्जेक्ट दैट यू स्टडीड एट अ अंडरग्रेड और अ पोस्ट ग्रेड लेवल is worth 2.5 to 3 credits unless it is an upper level subject, in which case it could be worth 5.5 to 7 credits. अब वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट का सिलेबस कैसा है। तो क्रेडिट्स जो है वो कुछ अलग चीज नहीं है, वो आपके मार्कशीट के जो सिलेबस है ना और जो सब्जेक्ट्स हैं उसके बेसिस पे ही कन्वर्ट होते हैं। That is essentially what a credit is. It's just your subjects being converted into points, your score being converted into points. So can you just put it into an example like you know let's say a BCom wants to do CPA. हाँ जैसे हमारे पास कई स्टूडेंट्स हैं ऐसे, जैसे हिमांशु है हमारा, हिमांशु सानी है, और recently I think you also enrolled a group of 5 individuals. Yeah, they were from DU. From DU, Ashi and her gang. Right. तो ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं ये 3 ईयर की अपनी ग्रेजुएशन करके आते हैं, तो इनके टोटल 90 क्रेडिट्स होते हैं। लेकिन इनके ना क्योंकि ग्रेजुएशन का जो स्कोप है वो कॉमर्स से रिलेटेड है, तो अकाउंटिंग, बिजनेस और इकोनॉमिक्स के क्रेडिट्स ज्यादा होते हैं। तो इफ यू क्रॉस 8+ तो कोई स्ट्रेस ही नहीं है, सीधा एलिजिबल हो। देन यू डोंट इवन नीड टू वरी अबाउट कि मेरे को पोस्ट ग्रेड में बाद में एनरोल करना है, अभी करना है। हाँ बट इफ दैट डजंट हैपन टू बी योर केस बिकॉज यू डिड अ ग्रेजुएशन वे बैक लाइक बिफोर 2010 और समथिंग लाइक दैट, पुराना है आपका ग्रेजुएशन, तो हो सकता है आपके सेमेस्टर वाइज ना हो एग्जाम्स, तो फिर उस केस में क्या होता है ना कि आपके क्रेडिट पॉइंट थोड़े कम होते हैं। 90 तो टोटल अभी भी बन जाएंगे, लेकिन अकाउंटिंग, बिजनेस, इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट कम होंगे। तो उस केस में अगेन देन पीपल आर यू नो स्टक इन अ सिचुएशन कि यार अब क्या करें, हाउ डू वी मूव अहेड। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन परस्यू एडिशनल क्वालिफिकेशन पैरेलली एंड देन दैट विल हेल्प यू यू नो गेट योर क्रेडिट पॉइंट्स up to the point where you need it. So when we talk about this you know additional qualification, again a very big myth, and you know institutions are making a lot of money by recommending these you know additional courses which they typically name them bridge course. So how this bridge course work? Is there some specific bridge course or additional course which we need to get into as a graduate? क्या होता है ना, आमतौर पे if you talk to one of the competing firms and if you're not eligible, उनको पता चल जाता है आप एलिजिबल नहीं हो, right, या फिर अगर आप बॉर्डर लाइन केस हो, तो ये क्या करेंगे ना, दे विल ट्राई एंड फोर्स यू कि अब इट्स इजी टू पार्टनर विद अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट के साथ तो पॉसिबल नहीं होता, यू कांट डू दैट,
बट प्राइवेट यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं ये, एंड देन उस केसेस में क्या होता है कि दे हैव अ फी शेयरिंग एग्रीमेंट। तो आपको ना ज़बरदस्ती एक कोर्स चिपका देंगे, कहेंगे जी यही कोर्स करना है, ये कोर्स की वैल्यू 60,000 है, आपके 60,000 लग गए, 20,000 की कमीशन वापस आ गई इंस्टीट्यूट के पास। तो ब्रिज कोर्स इज अ मार्केटिंग टर्म जो ज़बरदस्ती वो यूज़ करवा रहे हैं, ये कोर्स ही करो। रियलिटी ऑफ इट इज इफ यू डू अ MBA, you do an MCom, or if your AB credits, accounting, business, economic credits are complete, it could be a master's in psychology also, doesn't matter, किसी भी स्ट्रीम की मास्टर्स हो सकती है, क्रेडिट पॉइंट मिल जाएंगे। राइट। तो जबरदस्ती नहीं है कि यही कोर्स करो, आप कोई भी कोर्स कर सकते हो एज लॉन्ग एज यू मीट द 150 रिक्वायरमेंट। वो मीट करने के लिए मेरा ये मानना है कि आप स्टूडेंट को ये चॉइस दो ना कि आपको कौन सा कोर्स पसंद है, अभी आपको कौन सा करना है, आपको MBA करनी है आगे, बिकॉज यू फील के चल मैं CPA के साथ साथ MBA करूंगा तो मेरे पास ग्रेजुएशन भी हो गई, MBA भी हो गई और CPA भी हो जाएगी मेरे साथ साथ, यू विल गेट मोर एक्सपोजर टू MBA कर लो। आपको लगता नहीं MBA इज नॉट टेक अप टू मच ऑफ माय टाइम, आई डोंट वांट टू पुट इन दैट टाइम, तो MCom इज अनदर अल्टरनेटिव दैट यू हैव। एंड अगेन उसमें भी ना यू हैव चॉइसेस कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना आपने, जरूरी नहीं कि एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी लीजिए। अगर आपको पता है यार मेरे घर के पास की यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, अच्छी है, मैं DU के पास रहता हूँ, मैं मुंबई यूनिवर्सिटी के पास रहता हूँ, पुणे यूनिवर्सिटी इज वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम माय होम, और इट्स एटलीस्ट मोटरेबल, मैं गाड़ी चला के पहुंच जाऊँ वहाँ पे, एंड इट्स इजी टू कम्यूट टू दैट पर्टिकुलर लोकेशन। अगेन करना तो ऑनलाइन नहीं है आपने कोर्स, बट इट्स ईजियर टू देन गेट योर ट्रांसक्रिप्ट, गेट योर डॉक्यूमेंटेशन डन, पे योर फी, यू नो, गेट योर एडमिट कार्ड, ऑल ऑफ दैट। वो काम के लिए तो जाना पड़ता है, तो फिर पास में है तो वो वाला ले लो। यू डोंट हैव टू बी टाइड डाउन एनी मोर विद अ स्पेसिफिक कोर्स कि यही करना है, यही होना है, क्योंकि हमने ना वो टाई अप नहीं कर रखे एडीमॉट ने, राइट, कि कमीशन कमानी है, हम कमाएंगे पढ़ा के, ये सब करके नहीं कमाना है, दैट इज द आइडिया। So, okay, when a university, let's say I select, any of my nearby university या government university, so is it also needed कि उसका NAC होना जरूरी है, या मेरी फर्स्ट डिवीजन मेरी ग्रेजुएशन में या मास्टर्स में होना जरूरी है? हाँ, ये बात भी होती है। when student come, वो पहले से कहीं बात करके आते हैं, तो उनका होता है ना, सर मेरे को बोला था या मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था NAC A ग्रेड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, तो मेरी 3 साल की ग्रेजुएशन 4 साल काउंट होगी। देखो इसमें ना ये NAC वाली कहानी जो है ना, बहुत पुरानी है, मतलब ये 5 साल पुराना रूल है जो अब एप्लीकेबल नहीं है। बट इसमें ये जरूर होता है कि आपकी यूनिवर्सिटी जो UGC अप्रूव्ड होनी चाहिए। UGC अप्रूव्ड है ना, तो फिर काम आराम से हो जाएगा। बट इफ इट इज AICTE अप्रूव्ड ओनली, तो उसके क्रेडिट पॉइंट्स नहीं मिलते, या कम मिलते हैं एक्चुअली, ऐसा भी नहीं कि नहीं मिलते, कम मिलते हैं। क्रेडिट पॉइंट्स फुल लेने अगर अपनी, तो यू नीड UGC अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट। बट इससे फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो NAC है या नहीं है, या आपका कोर्स ऑनलाइन था या फुल टाइम था। BCom में भी कहता जी मेरी BCom जो है वो मैंने फुल टाइम नहीं करी, मैंने तो पार्ट टाइम करी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें आपके सिलेबस और मार्कशीट से फर्क पड़ता है, इसके अलावा और कुछ है नहीं इसमें। Perfect. I hope that gives some relaxation to the graduates now. So another question related to this only. So NAC A grade नहीं देखना है, ब्रिज कोर्स में हम ये कर सकते हैं, अपनी चॉइस यूज कर सकते हैं, अपनी चॉइस हम यूज कर सकते हैं। The another thing is, let's say I think हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स आए थे, they were in their last year of the graduation, and that was the very first moment I believe when we came across such cases 2-3 years back की बात कर रहा हूँ मैं। तो they were just DU से अभी थर्ड ईयर में ही थे, वो अभी पढ़ रहे थे, and they took a call कि हमको CPA प्रिपरेशन शुरू करनी है। हाँ। Now is it advisable to them, to these sort of people, जो कई बार होता है ना इंडिया में, तो वैसे ही स्टूडेंट्स अर्ली एज में थिंक करने लग जाता है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, पेरेंट्स प्रेशर भी होता है, सोसाइटी प्रेशर होता है। So what you suggest if somebody who is in their last semester or last year of their graduation and looking towards CPA, what they should do? They should wait till they complete their graduation? समझ रहा हूँ आपका सवाल, मतलब आप ये पूछ रहे हो कि should I wait and complete the requirements first, हाँ, या फिर मैं पैरेलली पढ़ाई शुरू कर दूं? अगर मैं BCom के बाद एलिजिबल हो ही जाऊंगा तो मैं 1 साल पढ़ाई में लगा मैं 1 साल अपना प्रिपरेशन। एक्चुअली दैट्स अ स्मार्टर अप्रोच, एंड if I can't remember the names entirely, tell me if I'm wrong, I think अपना हिमांशु का भी यही सीन है, विनय प्रताप का भी यही सीन है, और एक सरदार जी भी थे जो सौरभ ने एनरोल किए थे, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा उनका भी ऐसा ही सीन था। वो थर्ड ईयर में थे और उनको था कि अब मैं आगे अपनी पढ़ाई अब शुरू कर लूँ, क्योंकि थर्ड ईयर में कॉलेज में मेरी ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो रही, हाफ ऑफ द डे आई एम फ्री, तो वाई नॉट पुट इन द एफर्ट इन प्रिपेयरिंग एंड गेटिंग अकस्टम्ड टू द कंटेंट ऑफ CPA। एंड दैट एक्चुअली मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, बिकॉज इफ यू थिंक अबाउट इट ना, आपके पास लिमिटेड टाइम है, अनलिमिटेड तो है नहीं।
तो अगर आप पहले 2 साल अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने में लगाते हो, और बाय द वे रिक्वायरमेंट्स आप क्यों पूरी कर रहे हो, क्योंकि आपको सीपीए की रिक्वायरमेंट्स हैं, ये इसीलिए पूरी कर रहे हो, वरना आपको कोई कोई ज़रूरत नहीं थी एक्स्ट्रा कोर्स करने की या ये एक्स्ट्रा एम.कॉम या एमबीए करने की। आपने सिर्फ इसलिए करी क्योंकि आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी थी। तो अगर 2 साल पहले इस काम में लगाते हो और आप अपनी प्रिपरेशन को साइड लाइन कर देते हो, तो आपको भी पता ही नहीं कि आपने जो काम उठा लिया है सीपीए का, वो है कितना बड़ा, उसका स्कोप क्या है, उसकी तैयारी में एफर्ट कितना लगना है। Why not use this 1 year of your 3rd year, or maybe use this 1 year after completing your graduation instead of trying to fulfill the other requirements? Why not use that 1 year in preparing for the content parallelly? तो मैंने अपने टाइम पे ऐसे ही किया था। पर्सनली मैंने भी ये किया था कि यार ये एम.कॉम जैसा कोर्स जो है इज नॉट गोइंग टू रिक्वायर अ लॉट ऑफ एफर्ट और माई फुल टाइम एंगेजमेंट, स्पेशली डिस्टेंस का कोर्स है। तो वाई नॉट एक्चुअली स्पेंड दैट टाइम प्रिपेयरिंग फॉर सीपीए, गिविंग माई सेल्फ इनफ टाइम कि मैं ये कंटेंट अच्छे से समझ लूँ और एक एक करके पेपर निकालने शुरू करूँ। जब पेपर निकल जाते हैं तो पता ही है यार कि अब एम.कॉम भी सबमिट करनी ही है, तो काम आसान हो जाता ना। उल्टी गंगा बहाने में टाइम ज़्यादा लगता है, नुकसान कोई नहीं है, बस टाइम ज़्यादा But लगता है। again, you know, I generally face this question on the phone call when we interact and we counsel. You know, कि सर 9 months में हमारी सीपी हो जाएगी, मेरी ये बात हुई, मैंने ऑनलाइन पढ़ा, किसी ने लिखा होता उसकी 12 महीने में हो गई। और यू नो व्हेन आई लुक फॉरवर्ड कि मैं तो सीए बैकग्राउंड से हूँ या मेरा सीए इंटर क्वालिफाई है, मैं फाइनल अभी नहीं दे रहा, तो बीकॉम वाले को करना मुश्किल होता है सीपीए। कोई बीकॉम प्लस सीए इंटर भी होगा तो उसके लिए आसान होगा सीपीए करना। सो हाउ इट, व्हाट्स द एग्जैक्टली डिफरेंस, कितना मुश्किल होगा एक ग्रेजुएट के लिए सीपीए परस्यू करना और एक ग्रेजुएट हु इज कमिंग फ्रॉम अ सीए बैकग्राउंड उसके लिए सीपीए परस्यू हाँ, करना? ये भी बहुत बड़ा मिथ है कि अगर सीए आपने कर रखी है तो आपके लिए बहुत आसान है, हाँ। या इंटर भी कर रही है तो बहुत आसान है, हाँ, और 9 अगर months नहीं में हो कर रखी जाएगी, तो बहुत 12 months मुश्किल में है। हो जाएगी, करेक्ट। ऐसे इतनी वेरी एकदम नहीं होती, ऐसा नहीं होता। अब इसमें क्या है ना कि अगर आपने पढ़ाई छोड़ रखी है, बहुत टाइम से नौकरी कर रहे हो, तो ना आपका चैलेंज अलग है। और अगर आप जैसे सीए क्वालिफाई करके 5-7 साल एक्सपीरियंस ले लिया, आपका चैलेंज ना अलग हो जाता है। अब आपको अपना जॉब का काम भी मैनेज करना है, और छोड़ी तो जा नहीं सकती, 5 साल हो गए, आदत हो चुकी है सैलरी कमाने की, घर चलाने की, तो आपको वो भी मैनेज करना है, साथ में आपको पढ़ाई भी करनी है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका एडवांटेज ये होता है कि मैं अभी पढ़ाई करके हटा ही हूँ, मेरा फ्लो नहीं टूटा है, तो मैं पकड़ लूंगा। रहेगी बात इसकी कि सीए वाले को एडवांटेज है या नॉन सीए को एडवांटेज है, तो मैं एक मिथ और बस्ट कर देता हूँ यहीं पे कि यार ये जो कंटेंट है ना हमारा सीपीए का, ये अलग है, ये सेम कंटेंट नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि सेम कंटेंट की 2 अलग अलग डिग्रियां चल रही हैं दुनिया में। सीपीए में कंटेंट अलग होगा ही, यूएस की डिग्री है, तो भाई जो टैक्सेशन का पेपर है वो एंटायरली अलग है। तो आपने इंडिया में टैक्स पढ़ लिया है, जिससे को फर्क नहीं पड़ता, यूएस का टैक्स एंटायरली अलग है। आपने इंडिया में आईएनडीएस की अकाउंटिंग पढ़ ली है सीए में, फर्क नहीं पड़ता, यूएस गैप अलग है। यूएस गैप और आईएफआरएस सिमिलर है, आईएफआरएस और आईएनडीएस सिमिलर है, सिमिलैरिटी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि सेम चीज़ है। तो पढ़ना तो शुरू से ही करना पड़ेगा। जो भी किताब लेके बैठेगा उसको पहले पन्ने से लेके आखिरी पन्ने तक पढ़ना पूरा पड़ेगा। तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता इतना कि आपने तो सीए कर रखी है, आपका तो बड़ी जल्दी हो जाएगा, और आपने तो इंटर कर रखी है, आपका भी बड़ी जल्दी हो जाएगा। अच्छा, आप सिर्फ ग्रेजुएट हो, आपको बड़ी देर लग जाएगी। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, कुछ लोग 12 महीने में करते हैं सीपीए, कुछ 9 में करते हैं, कुछ 6 में करने की सोचते हैं, कुछ 18 में करते हैं। फर्क नहीं पड़ता इस बात से। कितने अटेम्प्ट लगे हैं सीए में, इससे फर्क पड़ता है। करेक्ट, कितने अटेम्प्ट लगे हैं सीपीए में, इससे फर्क पड़ता है। पड़ेगा। अटेम्प्ट मिनिमाइज करने का गेम होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मेरे को 6 महीने में करनी है लेकिन मैं 2 पेपर में फेल हो गया तो मुझे फिर वापस टाइम देना पड़ रहा। समझदारी तो ये है ना कि आप अपनी अटेम्प्ट्स मिनिमाइज कर लो, ये लॉजिक है। सो एज वी आर टॉकिंग अबाउट कंटेंट रोहन, तो इसी कंटेंट से रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है, वो सीपीए में मर्ज नहीं हो रहा, बट हाँ व्हेन वी टॉक अबाउट सीपीए एंड सीएमए, जनरली ग्रेजुएट्स आर जनरली इंक्लाइंड टुवर्ड्स सीएमए। यू नो, मार्केट अप्रोच भी वही है, हम मार्केटिंग वीडियोस देखते हैं, वो अप्रोच भी वही है कि सीएमए कर लो, आपको कंटेंट का टेस्ट मिल जाएगा, इजी है, शॉर्टर टर्म में हो जाएगा, एंड देन यू लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स सीपीए। सो इज इट रिकमेंडेड कि मैं पहले सीएमए कर लूं क्योंकि मैं ग्रेजुएट हूं, एंड देन आई लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स सीपीए? हाँ, ये बात सही है कि मतलब द मार्केट ट्रेंड इन जनरल इसके, अगर ग्रेजुएट स्टूडेंट आ जाता है तो लोग कोशिश करते हैं कि उसको सीएमए फिक्स करा दें बेसिकली, कि सीएमए कर लो, क्योंकि सीएमए में फिर वो ऑपरेशनल इश्यूज कम हो जाएंगे ना, उसके लिए उसको एलिजिबिलिटी का प्रॉब्लम ही नहीं रह जाएगा, और ना वो वर्क अराउंड करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट को। बट द प्रॉब्लम विद दैट इज कि इफ योर इंटेंशन इज कि आपने सीएमए और सीपीए दोनों करनी है, तो द एक्चुअल फ्लो शुड बी कि पहले सीपीए करो फिर सीएमए करो।
बिकॉज व्हाट पीपल डोंट रियलाइज इज कि सीएमए इज अ स्पेशलाइजेशन क्वालिफिकेशन. उसका नाम है सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट. मैनेजमेंट अकाउंटेंसी की स्पेशलाइजेशन है वो. तो अगर आपने ब्रॉडर काम पहले किया ही नहीं है, सीपीए वजह तो ब्रॉडर डिग्री वो आपने पहले की नहीं है, आपने उठा के सीधा ही स्पेशलाइजेशन कर ली है, तो आपने काम तो इनकम्प्लीट किया ना. आपने पहला माला पहले डाल दिया है, बिल्डिंग की बेस बनाई नहीं है. ये इनकम्प्लीट काम है. करेक्ट. और फिर उसके बाद सीपीए करने में इंक्रीमेंटल डिफिकल्टी बढ़ेगी, कम नहीं होगी. बिकॉज द आइडिया इज के सीपीए का जो कंटेंट है वो बहुत ब्रॉड है इन कंपैरिजन टू सीएमए. तो वो सीएमए का 80% कंटेंट कवर कर लेता है. तो अगर आप सीपीए करके सीएमए करते हो, जैसे मैंने भी किया था, तो उसमें ये आसानी हो जाती है कि आप सीएमए ना फिर जल्दी कर लेते हो. यू पिक इट अप वेरी क्विकली एंड यू आर एबल टू परफॉर्म द कैलकुलेशंस, परफॉर्म द क्वेश्चंस रादर क्विकली, एंड यू आर एबल टू क्लियर द एग्जाम ऑल्सो फेयरली क्विकली. बट यही अगर आप उल्टा चलते हो तो पहले सीएमए में आप 6-8 महीने लगाते हो पहले सीएमए करने के लिए, फिर सीपीए में आते हो और आप देखते हो लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा इंक्रीमेंटली बढ़ रखा है. इस सीएमए का कंटेंट तो सीपीए ने कवर कर लिया है, पर सीपीए का जो कंटेंट है वो सीएमए ने नहीं कवर किया. फर्क है. तो व्हेन यू एक्चुअली गो बैक द अदर वे अराउंड, यू रियलाइज अच्छा तो सिर्फ 1.5 सब्जेक्ट का ही फायदा मिला है सीएमए पहले कर लेने से. सिर्फ 1.5 सब्जेक्ट ही है जो मेरे को थोड़ा फेमिलियर हो गया, वो पढ़ना वो भी फिर से ही पढ़ना है. तो इट डजंट रियली सेव एनी टाइम एज सच. द स्मार्टर अप्रोच इफ यू आर कन्विंस्ड कि आपने दोनों करनी है, और बहुत लोग करते भी हैं, मैंने भी किया, तो इट्स मच बेटर टू डू योर सीपीए फर्स्ट व्हिच इज द ब्रॉडर क्वालिफिकेशन टू अटेन, एंड देन स्पेशलाइज इन सीएमए कि मैं मैनेजमेंट अकाउंटेंसी में स्पेशलाइजेशन कर लेता हूँ. पेपर भी ज़्यादा आसानी से निकलेगा, कंटेंट भी ज़्यादा अच्छे से कवर हो जाएगा. Right. ये बेनिफिट है. And when we see the job market, somebody enter as a CPA, fresher, or somebody enter as a CMA fresher, तो वो जॉब सेगमेंट कैसा वर्क करता है? सो द आइडिया इज कि अब ये ग्रेजुएट्स को ये प्रॉब्लम होती है. हाँ, कि आप 120 कंप्लीट कर लिए फॉर एग्जांपल, या 120 का हिसाब बैठा के किसी तरह हमने पेपर तो दे दिए, पर लाइसेंस आने में भी टाइम है. राइट. तो क्या जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, ये डाउट रहता लोगों के मन में. राइट. तो अब इसमें क्या है ना कि द वे द मार्केट इज सेटअप इन इंडिया इज इफ यू कंप्लीटेड द 4 एग्जाम्स ऑफ सीपीए, यू आर एक्चुअली केपेबल ऑफ गेटिंग अ जॉब at one of these fancy names that you think of, one of these big major companies that you want. In the sense कि आप ना फिर अपने नाम के आगे लिखते हो CPA ब्रैकेट में लाइसेंस अवेटेड, कि लाइसेंस अभी आना है, आया नहीं है, आना है. तो एम्प्लॉयर को क्या मिलता है इससे? एम्प्लॉयर को दिखता है अच्छा इसका लाइसेंस तो अभी आया नहीं, पूरा सीपीए नहीं बना अभी, क्योंकि बिना लाइसेंस के सीपीए नहीं हो. तो ठीक है, अगर मैं 10 लाख दे रहा था इस नौकरी के, तो मैं इसका ना लाख रुपए काट लेता हूँ, मैं 9 लाख दे देता हूँ. स्टूडेंट को क्या बेनिफिट है? कंपनी का लाख रुपए बच गया, तुम्हारे लिए तो फिर भी इट्स अ बम्प अप, ग्रेजुएशन की नौकरी के मुकाबले तो मच बेटर. बट एट द सेम टाइम यू देन गेट द एडिशनल 3 years टू गेट योर लाइसेंस, एंड व्हेन यू डू तो फिर आपका वापस वो 1 लाख बढ़ जाता. यू कैन देन गेट दैट बम्प अप. बट एट द सेम टाइम यू डोंट हैव टू वेट कि मेरा लाइसेंस जब आएगा तभी नौकरी अप्लाई करूंगा. गुड थिंग इज कंपनी को पता है यार लाख रुपए बच गया, इसने सारा मोटा काम तो कर ही लिया, लाइसेंस इज जस्ट ऑपरेशनल. उसकी रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है ना कि एग्जाम दो वगैरह वगैरह, उसकी रिक्वायरमेंट है पेपर वर्क कंप्लीट करके लाके दो, अपना एक्सपीरियंस सब्सटेंशिएट करो, अपना 150 क्रेडिट्स कंप्लीट करके लाके दो, एथिक्स का असेसमेंट कंप्लीट करके लाके दो. ये सब चीज़ें उसमें, ये ऑपरेशनल है, ये कोई एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें नहीं है. तो कंपनी को पता चल जाता है चल ठीक है अपना पैसा भी बचेगा और इसने मोटा माटी काम सारा कर ही लिया है, तो इसको हायर कर लो, ट्रेनिंग देनी शुरू कर दो. आपको ट्रेनिंग मिलनी शुरू हो जाती है, आपको रीजनेबली गुड सैलरी मिलनी शुरू हो जाती है, एंड विद इन 3 years फ्रॉम कंप्लीटिंग योर एग्जाम्स आप अपना लाइसेंस अप्लाई करके वो बम्प अप भी ले सकते हो कि जिस दिन लाइसेंस आएगा उस दिन ही बोलेंगे यार लाख रुपए बढ़ा के दो, मुझे भी 10 दो पूरे. राइट. सो एज वी आर टॉकिंग अबाउट जॉब सेगमेंट, इफ यू कैन रिकॉल, हमारा रिसेंटली एक कैंडिडेट से डिस्कशन हुआ था, एंड ही वाज लाइक कि सर मैं अगर मेरा पहला पेपर क्लियर हो जाएगा तो विल यू हेल्प मी टू गेट अ जॉब. हाँ, मेरे को जॉब दिलवा दे एक पेपर पे. तो मेरे को और चल रही है आजकल मार्केट में, क्योंकि एक इंस्टीट्यूट ने ना ये शोर मचा रखा है कि अगर आप 2 पेपर भी क्लियर कर लेते हो तो हम आपकी नौकरी लगवा देते हैं. हाँ यार नौकरी लग जाती है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं. एंड ही वाज लाइक प्योरली कि मैं 2 पेपर देके नौकरी करूंगा, मेरे को नौकरी लगवा दो. हाँ, नौकरी दिलवा दे तो मैं एनरोल कर लेता हूं. हाँ नौकरी लग जाती है, वो प्रॉब्लम. दे वांट ही जस्ट वांट अ गारंटी ऑन टू दिस. करेक्ट. नौकरी मिल जाती है, that's fine. The thing you have to understand is no company on planet Earth will pay you a CPA's pay without you completing the 4 exams. अगर 2 ही किए हैं ना तो आधे ही बने हो अभी, तो पे भी आधी है फिर. तो ग्रेजुएशन लेवल की नौकरी से थोड़ा ऊपर जाना है, इतनी ही चाहे मन में, तो 2 पेपर दे दो, हम भी नौकरी लगवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं. बट
वो नौकरी सीपीए की नौकरी नहीं होगी। आई वॉन्ट टू बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। वो सीपीए की नौकरी नहीं है। सीपीए की नौकरी चाहिए इतना ही 19-20 हो सकता है कि आपके 4 पेपर निकल गए, लाइसेंस नहीं आया, फिर मिल जाती सीपीए की नौकरी। लाइसेंस आ जाए तो बेटर मिल जाती है, इतना होता है। ये नहीं हो सकता कि एक पेपर करके मेरे को अकाउंटिंग की नौकरी मिल जाएगी क्या, 2 पेपर करके मेरे को ऑडिटर की नौकरी मिल जाएगी क्या, मिल जाएगी, बट सीपीए लेवल की नहीं होगी, वो एंट्री लेवल जॉब ही होगी, उससे एक लेवल ऊपर हो जाएगा इतना। ग्रेजुएट को एंट्री में एसोसिएट मानते हैं, आपको एसोसिएट 2 ले लेंगे, इससे ऊपर नहीं होगा। ये नहीं होगा आपको सीनियर ले लेंगे, वो सीनियर लगना है सीपीए कंप्लीट करके ला के दो, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। सो चलो हमने, इफ आई स्केल इट डाउन टू द प्रोसेस, मैं ग्रेजुएट था, मैंने सीपीए कर ली, मैंने 4 पेपर क्लियर कर लिए, मेरी नौकरी भी लग गई। अब मेरी नौकरी जो लगेगी वो 10 लाख लगेगी, 12 लाख लगेगी, क्या आप मेरे को यूएस में जॉब दिलवा दोगे? कैन वी गिव दिस सॉर्ट ऑफ श्योरिटी एंड गारंटी कि इसका हम बड़ा सीधा 10 जवाब लाख है। 12 लाख दिलवा देंगे, हम नहीं, मैं कनाडा भेज इसका मैं देंगे? पे स्केल बता देता हूँ और मैं बड़ा सीधा सा जवाब दे देता हूँ मैं आपको। जो भी आपको ये कहानी सुना दे कि जी मैं आपको 12 लाख की नौकरी लगवा दूंगा, मैं आपको कनाडा में नौकरी लगवा दूंगा, मैं आपकी बिग 4 में गारंटी कर देता हूँ, एक चीज मत भूलो यार, आपका अपना मेरिट ही डिसाइड करेगा कि आप अल्टीमेटली कहाँ पहुंचते हो लाइफ में। आपका अपना मेरिट जो है वही आपको आगे ले जाएगा, किसी का जुगाड़ नहीं चलेगा, और जुगाड़ होते भी नहीं है, मैं ये भी बता दूं। ऐसा नहीं है कि मेरी पार्टनर लेवल के लोगों से जान पहचान नहीं है या मेरा उनके साथ उठना बैठना नहीं है। माई वाइफ वर्क्स इन डिलॉयट, शी नोज द पार्टनर, देव कम फॉर डिनर, बट दैट डजंट मीन कि मैं, मान लो किसी ने डिलॉयट ने किसी कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया, तो दैट डजंट मीन कि मैं डिलॉयट के कनपट्टी बंदूक रख के बोलूंगा नहीं इसको एक्सेप्ट करो ही करो। डिलॉयट की अपनी पॉलिसीज अपने प्रोसीजर्स हैं। मैं आपको इंटरव्यू रूम तक ले जा सकता हूँ, इंटरव्यू देकर उसको क्लियर करना, 4 राउंड, चारों राउंड क्लियर करना, ये आपका काम है। और ये आपको करने के लिए जो स्किल्स चाहिए उसमें मदद दे सकता हूँ मैं आपकी। अगर आप सीखना चाहते हो कि कैसे हम कम्युनिकेट करें, कैसे हम अपना सीवी प्रेजेंट करें, हाँ ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, ये हम आपको दे सकते हैं। बट टू एसेंशियली मिसलीड यू एंड से कि गारंटी है, गारंटी है, मतलब मना कर ही नहीं सकता आपको ईवाई, मना कर ही नहीं सकता डिलॉयट आपको, ऐसे नहीं होता यार, दुनिया ऐसे नहीं चलती है। दैट्स द ट्रूथ ऑफ इट। So my last question in this podcast: how can Edumont help graduates to get registered with AICPA if they want to pursue CPA? Right. So again, we discussed at length, I think, about the eligibility part, and we spoke about कि eligibility में 90 credits में भी आप eligible हो जाते हो. So the first thing that we do is we're actually tied up with Wiley, and as a result, Wiley जो है, they bring on their own team as well to assist us with their eligibility, which is Chris, who's in the US, Christopher Magath, Chris to me, Christopher Magath to everybody else, who and 20 of his teammates run this process for us कि डेली बेसिस पे जो भी हमारी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जिन जिन की चेक होनी है वो चेक करते हैं, एंड फिर उसके बाद आपको प्रोसेस और स्टेट बोर्ड असाइन करते हैं। एंड नॉट ओनली दैट, द स्टेट बोर्ड दैट दे असाइन टू यू कम्स विद अ गारंटी कि अगर ये स्टेट बोर्ड जो है, अगर ये रिजेक्ट कर देता ना आपका केस, तो वाइली अपने पल्लू से, अपनी जेब से जो आपकी फीस लगी है वापस करेगा। इन एप्लीकेशन जो भी फीस आपकी लगी है गलत स्टेट बोर्ड के साथ वापस करेगा। तो वो गलती नहीं करते इस वजह से, वो गारंटी तभी दे पा रहे हैं, उनको पता उनकी गलती होनी नहीं, they have a good enough understanding. Correct. तो वाइली के साथ वो टाई अप करके हम स्टेट बोर्ड आपको प्रेजेंट करते हैं, आपको वो एक स्पेसिफिक स्टेट बोर्ड जो है जो पक्का चल जाएगा वो हम देते हैं। एंड देन अगर आपको पेपर वर्क में मदद चाहिए, फॉर एग्जांपल फॉर्म कैसे भरना है, फीस कहाँ जमा करानी है, कौन कौन से पोर्टल पे अकाउंट बनाने हैं, क्या प्रोसेस है इसका, क्या सीरीज रहेगा प्रोसेस का, वो सारी चीज़ हम हैंड होल्ड करते हैं। सो वी गॉट टीम मेंबर्स, यू आर ऑलरेडी अवेयर कि हमारे टीम मेंबर्स हैं जिनको फिर हम कहते हैं यार कि आप कॉल कर लो इनको, ये आपके साथ स्क्रीन शेयर करके आपका फॉर्म भरवा देंगे। तो उस लेवल तक हम मदद देने को तैयार हो जाते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ व्हाट वी डू हियर। करेक्ट। सो I think we have covered a lot of things into this quick session. Yeah. Any takeaways which you want to give to the people or the candidates? So my takeaway for graduates, जो आप कह रहे हो, my takeaway for graduates would be यार कि I know the world is tough and सिर्फ ग्रेजुएशन से एक अच्छी वेल पेइंग जॉब प्रोक्योर करना मुश्किल हो जाता है। सो you're naturally going to be confused कि सिर्फ ग्रेजुएशन से बात नहीं बननी तो और क्या क्या करना है। You have to first decide what is your core area of interest, क्योंकि अगर अपने इंटरेस्ट से बाहर जाके कुछ काम करोगे
तो खुशी मिल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है उसमें। पर अगर आप अपना इंटरेस्ट डिसाइड कर पाते हो और उस इंटरेस्ट एरिया में अगर अकाउंटिंग फाइनेंस के डोमेन आते हैं, तो देन यू शुड गो फॉर सीपीए। एंड नॉट एट हार्ड सेल इट टू यू, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू जेन्युइनली, जो वर्ल्ड ओवर स्कोप है ना सीपीए का, बहुत बहुत ब्रॉड है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यूएई है ना, इनफैक्ट ऑल ऑफ दीज एमिराती कंट्रीज, सऊदी अरेबिया एंड इट्स नेबर्स, ओपेक, ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो है, दे ऑल डील इन डॉलर्स फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑयल। देयर इकोनॉमी इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन डॉलर्स, व्हिच इज व्हाट वी कॉल इट पेट्रो डॉलर्स। तो डॉलर में इतना उनका लेन देन है, तो उनकी अकाउंटिंग भी फिर अमेरिकन स्टैंडर्ड के बेसिस पे बन गई है। तो यूएई की अपनी अकाउंटिंग की क्वालिफिकेशन नहीं है। जैसे इंडिया में सीए है, यूके में एसीसी है, यूएई की अपनी नहीं है। तो वो किसको किसको मानते हैं अपना अकाउंटेंट? सीपीए को। कनाडा की अगर आपको सीपीए लेनी है, कल को कनाडा इमिग्रेशन लेके आप बाहर चले जाते हो, आपको कनाडा की सीपीए करनी है, क्योंकि आप अकाउंटिंग के प्रोफेशनल हो, आपने सारी जिंदगी अकाउंटिंग करी है, सीए मान लो आपकी हो रखी है, आप अकाउंटिंग कर रहे हो, तो आपको इस डोमेन में जाना है। तो अगर आपको वहां जाकर उनकी वो डिग्री लेनी है, और अगर सीए हो, तो मिनिमम 6 मंथ्स की वहां ट्रेनिंग अपनी जेब से खर्च के पहले वो लो, फिर 3 डे कंटिन्यूस एग्जाम दो। और अगर सीए नहीं है तो 2.5 साल का प्रोसेस है, मल्टीपल लेवल्स ऑफ एग्जाम्स हैं, 2.5 साल का प्रोसेस है। यही अगर आपकी यूएस सीपीए हो रखी है, तो 0 पेपर देने हैं आपने, मुफ्त में मिल जाएगी आपको सीपीए कनाडा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और सीपीए कनाडा मिल गई तो कनाडा में फिर आप अपना सीपीए होकर जॉब कर सकते हो। ये ग्लोबल स्कोप जो है ना सीपीए का, ये और किसी route to go to Canada as well. It's not कि मेरे को सिर्फ मार्केट करना पड़ेगा. There is authentic route to go to Canada. Absolutely. And that's the whole point कि मतलब सिर्फ कनाडा नहीं यार, मान लो ऑस्ट्रेलिया जाना है, न्यूजीलैंड, कहीं भी जाना है, या इंडिया में ही रहकर काम करना है, सीपीए का जो स्कोप है वो किसी भी और क्वालिफिकेशन का नहीं है और ना होगा। उसके पीछे कारण बड़ा सीधा है, जो मैंने शुरुआत में ही बोल दिया था। The American economy is the dominating power in the world. They dominate so much of world trade, आप सोच नहीं सकते। तो because of that very reason, उनकी क्वालिफिकेशन अगर आपने कर ली है तो बात बन जाएगी। और अगर आप नोटिस करो ना, जो बाकी पॉपुलर क्वालिफिकेशंस हैं जो हम सोचते हैं, जैसे सीएफए हो गई, सीएफए इज एन अमेरिकन डिग्री, इट्स नॉट एन इंडियन डिग्री, इट्स अमेरिकन डिग्री। सीपीए तो है ही है, सीए में यूएस, अमेरिकन डिग्री, यूएस की डिग्री। अगर आप सोचते हो जी, मैं आजकल एक नया डिग्री चल रहा है, एफआरएम, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, सो इफ you're in the risk field of work and you want to skill up, तो FRM is a good qualification. So FRM again is an American qualification. So every major qualification that you think of is attainable and achievable and will help you get that career goal, by and large American ही है. Great. So I hope lot of folks gonna watch this, so they'll get some sort of clarity choosing the right course. And guys, if you face any sort of issue, you can always reach out to us at edumontclasses.com. Every Saturday 4:30 we do a roadmap session on how to become a CPA in one attempt. Zoom webinar on Zoom webinar, and Rohan sir leads that session, and that would be again two-way interactive session. So कोई भी doubts होते हैं आप उसमें आके you can always ask and we'll answer them, we'll address them. And it is again there's no charge to again that. It's free of cost. We are not charging you anything. It's an informational webinar. आओ देखो जो आपको पूछना है पूछो. So this is how this whole process goes. So you can always reach out to us. And in the last, if you want to have some specific topics covered like this podcast series, do comment below. We'll make a complete series around it and we'll upload it. And please do like, share and comment and subscribe to our channel, please. Yes, please subscribe. Bye everybody. Bye Have everybody. A good day. Take care.